Hello students, welcome to Study Gist. The topics which will be covered today under tissue, these are simple permanent tissue. One for simple permanent tissue we have discussed in the last class. The rest of the simple permanent tissues like collenchyma and sclerenchyma will be discussed today. More the protective tissues as epidermis and the cork, these also, and the stomata. So before we start today's class, let's tell something about us. As you can see, this is our YouTube channel, Study Gist Academy. Subscribe to this channel. This is our Facebook page. Like our Facebook page. Join us through the Telegram channel, that is Study Gist School 7 to 10. Here you will get every kind of notification regarding studies, classes, live classes, study materials as well. Like us on the Instagram. You can also join with us through the WhatsApp, and for more details you can go to the website which is written here, www.studygist.in. This is our app, how it looks like in your phone, Study Gist. This app is very user friendly, believe me. So what are you waiting for? Just go and download this app. It's really available, and you can get every kinds of informations, every kind of classes, details. These are basically handled through this app. So hurry up. And this is the YouTube channel. Subscribe it. Don't forget to hit the bell icon, because to get every kind of notification, you will be the first one. You will get the initial information, initial notification of this. Next, this is our Facebook page. To like us. Now without any further delay, let's move on to our class. So as we have discussed so far, tissues, basic tissues we have discussed. Plant और animal tissues क्या है, basic वहाँ पर different types of tissues का ज़रूरत क्या है, क्यों प्लांट और एनिमल दोनों लिविंग बीइंग होने के बावजूद भी प्लांट एंड एनिमल्स दे डोंट हैव द सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, राइट. फिर मेस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़, ये हम लोग डिस्कस किए थे. परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, राइट, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यूज में एक टिश्यू विच इज अ पैरेन्काइमा, फर्स्ट वन विच वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास. ओके, सो पैरेन्काइमा टिश्यू में हम लोग क्या देखे थे, ये एक ऐसा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो बहुत ही एक आइसोडायमेट्रिक शेप का होता है, आइसोडायमेट्रिक शेप का, और उस शेप के वजह से और इस सेल नेचर की वजह से ये जो है वो प्लांट का जो सॉफ्ट पार्ट्स है उसमें प्रेजेंट रहता है. तो हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू है, दैट्स कोलेनकाइमा. लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. सो कोलेनकाइमा, okay, so collenchyma tissue, the name of it comes from the word cola, which is a Greek word, right? So Greek, this cola means glue. So collenchyma tissue, it consists of the living cell. It's not कि ये dead cell से बना होता है, right? ये भी, just wait a minute. ये कोलेनकाइमा जो टिश्यू है ये लिविंग सेल से बना होता है. इट शोज मेनी फीचर्स ऑफ द पैरेन्काइमा बट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलोज एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल. ये आप लोग देख सकते हो, ये जो कॉर्नर्स है, ये कॉर्नर्स में पैरेन्काइमा की तरह यहाँ पर भी बोल सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस है, क्योंकि ये कॉर्नर्स जो है दीज आर नॉट फ्री कॉर्नर्स. सो ये इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो मटेरियल से पैक्ड है, डिपोजिशन भरा हुआ है. यहाँ पर क्या डिपोजिशन है? डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सेलुलोज टू इट. ओके, इन कोलेनकाइमा इंटरसेलुलर स्पेसेस आर जनरली एब्सेंट and these are elongated in shape. These are not very much circular like the parenchyma, like the previous one. Rather, these are elongated in shape
and often contains a few chloroplast. जैसे पैरेन्काइमा में बहुत abundant amount of chloroplast रहता है, वैसा नहीं है, यहाँ पर बहुत कम होता है. So where are these cells, this collenchyma tissues are present? The cells of the collenchyma are located below the epidermis. Epidermis क्या होता है? Epidermis एक सेल, कोई भी टिश्यू का आउटर कवरिंग लेयर जो है, दैट इज द एपिडर्मिस. ओके, सो उसके ठीक नीचे ये प्रेजेंट रहता है. वन रीजन इज देयर epidermis. After that, the region which we can see, that is the hypodermis region. In the hypodermis region, basically this collenchyma cells or tissues are found. Stem and petiole, below the epidermis of the dicot stem, dicotyledon, dicot stem or petiole. These cells also occur in the midribs of the dicot leaves. एक लीफ के बीच का जो लाइन रहता है, डार्क लाइन रहता है, जो एक लीफ को दोनों साइड का पार्ट में डिवाइड करता है, वो उसमें मिडरीब में ये कोलेनकाइमा सेल रहता है. And it's absent in monocot. Like grasses, grass family, the roots and the leaves, monocot stem में, root में और leaves में. Monocots basically, the grasses are considered as the monocots. So in monocots, in the grasses, this collenchyma tissue is absolutely absent. Next one. Okay. So what are the functions of the collenchyma? Collenchyma is a mechanical tissue in young dicotyledonous stem, and it provides the mechanical support and elasticity. So see, I was talking about the epidermis. This is the covering, and this layer is called epidermis, which is made up of this outer layer of cell. This layer is called epidermis. Okay, and just beneath this layer, this layer you can see, this layer is the hypodermis. Beneath the epidermis, the layer is hypodermis. Alright, hypodermis जो layer है, उसमें जो cell है वो है, उसमें वो जो tissue से बनता है, that is the collenchyma tissue. ये जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोवाइड द इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी से क्या होता है, जो प्लांट्स में जो बेंडिंग मूवमेंट होता है उसकी वजह से the plant body gets protected due to the elasticity of the plant body, which is, we have now come to know that this is provided by the collenchyma tissue. Due to this elasticity, the stability of the plant gets maintained, and thus the collenchyma provides the tensile strength with flexibility. Elasticity has the elasticity. इसमें elasticity है, इसलिए it can provide the flexibility to the plant, to those organs in which it is found. जहाँ पर ये present रहता है, इसमें the hypodermis region में ये basically present रहता है, तो hypodermis region में बहुत ज़्यादा flexibility रहता है, जिसके वजह से जो bending movements है plant का, उसके उस bending movement, as a result of those bending movement, the plant body does not get support कुछ नहीं होता है. It allows the easy bending and various parts of plant, leaf, stem, without actually breaking. जो कहा मैंने कि it has the flexibility due to the elastic power of it, and due to that, after vigorous bending movement also, plant body actually, the parts of the plants do not break down. When the cells of the collenchyma contain some chloroplast, so definitely तब वो क्या हो जाता है, तब वो it becomes capable of photosynthesizing. So जब photosynthesis से कर सकता है, so it can manufacture or synthesize sugar and starch as well. Next simple permanent tissue, last one, that is the sclerenchyma. In sclerenchyma tissue, this is made up of sclerenchyma cells. These are the sclerenchyma cells. ये एक cell है, ये एक cell है. These are the sclerenchyma cells, and it is made up of
दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेवरल स्क्लेरेंकाइमा सेल्स. वेरी इंपॉर्टेंटली कि पहले जो टिश्यूज हम लोग देख रहे थे, पैरेन्काइमा हो चाहे वो कोलेनकाइमा हो, दोज आर लिविंग इन नेचर. ओनली इफ यू आर आस्क्ड टू नेम वन सिंपल परमानेंट टिश्यू विच इज डेड इन नेचर और विच कंटेन्स डेड सेल्स, दैट इज द स्क्लेरेंकाइमा. ओके, एंड इट डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म. लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि वन सेल either it will be living or it will be dead. It depends on the presence or absence of the protoplasm, this component. And due to presence or absence of this component only, the living and non-living cells are differentiated from each other. So as it is devoid of protoplasm, that is why it is dead cell. ऐसा नहीं कि कोई भी कह दिया कि ये dead है तो dead है, कोई भी कह दिया कि वो दोनों जो सेल जो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा है वो उसमें वो लिविंग है तो लिविंग है. नो, द प्रूफ इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म. राइट, दोनों में प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट रहता है, इसमें नहीं रहता है. मोर ओवर द सेल वॉल ऑफ द स्क्लेरेंकाइमा इज ग्रेटली थिकन विद द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. मैंने देखा, हम लोगों ने देखा कि जो पैरेन्काइमा है उसमें कोई डिपोजिशन नहीं रहता है. दैट्स वाई ड्यू टू नो काइंड्स ऑफ डिपोजिशन the intercellular spaces are found, whereas in colenenchyma just now we have seen कि वहाँ पर intercellular spaces नहीं होता है due to the deposition of the which material, cellulose, right. यहाँ पर cellulose नहीं रहता है, यहाँ पर और भी hard material रहता है. Okay, that material is the lignin, and such cell wall, these are called lignified due to the deposition of this specific material, lignin. The cell wall of the sclerenchyma cells are known as the lignified. Their cell walls are lignified. And due to excessive thickening, इतना ज़्यादा lignin deposition होगा तो thick तो होगा. तो due to this thickening of the cell wall, its cell cavity and the lumen becomes nearly absent. ये cell cavity और lumen अगर नहीं रहेगा तो ये इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा. इसीलिए ये इसका जो सेल है वो डेड सेल से बना हुआ होता है. फॉर दिस रीजन ओनली, फर्स्टली इट डजंट पोजेस एनी प्रोटोप्लाज्म इनसाइड, इट इज डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म. उसके ऊपर जो है इसका जो सेल कैविटी और ल्यूमेन है वो ऑलमोस्ट है ही नहीं, ऑलमोस्ट दीज आर एब्सेंट. एंड फॉर दिस रीजन द सेल्स of the sclerenchyma tissues made up these are dead in nature, just called dead cells. The cells of the sclerenchyma are closely packed without intercellular spaces, right, due to the deposition of lignin. अब lignin deposit हो रहा है तो intercellular space तो नहीं रहेगा, as you can see here. लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक चीज़ रहता है, आप लोग देख रहे हो कि the boundaries of the cell wall, ठीक है, ये सेल मानते हैं, this is one cell adjacent cell and this is another adjacent sclerenchyma cell. अब इसका जो जंक्शन है, स्पेस तो इसमें नहीं है क्योंकि इसमें इसका सेल वॉल जो है बहुत ही थिक होता है लिग्निन डिपोजिशन की वजह से. बट इन बिटवीन दीज टू एडजेसेंट और सक्सीडिंग स्क्लेरेंकाइमा सेल्स, ये देख रहे हो आप लोग, एक पार्ट है, मिडल पार्ट एट द जंक्शन, इट इज कॉल्ड मिडिल लैमेला, राइट. तो मिडिल लैमेला, कॉन्स्पिक्यूअस मिडिल लैमेला एग्जिस्ट बिटवीन टू स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स. यहाँ नहीं है कि यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पर एक सेल है, इसके बीच में मिडिल लैमेला की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर दोनों every two cells they are having a common middle lamella in between them. And what is it basically? It is a thin layer of cementing substance. Cementing मतलब क्या है? Cementing हम लोग कब यूज़ करते हैं? With in between two bricks to join something we use as gluing or cementing agent. So ये middle lamella जो है, ये आप लोग देख रहे हो कि ये जो दो सेल है, दो सेल के बीच में जो मिडिल लैमेला वो प्रेजेंट रहता है, ये एक सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है ताकि दोनों सेल के बीच, दोनों सेल में वो दोनों सेल एक दूसरे से जुड़े रहें. So adjacent plant cells are being attached with the presence of one cementing substance that is middle lamella. ये region को middle lamella कहा जाता है and it contains
पेक्टिन, लिग्निन, प्रोटीन एज वेल, ये सब मटेरियल्स रह के ये सीमेंटिंग पार्ट मिडल लैमेला बनाता है. ओके, सो मिडल लैमेला इज नॉट द सब्सटेंस, मिडल लैमेला इज द कॉन्स्पिक्यूअस थिन लेयर प्रेजेंट इन बिटवीन टू सक्सेसिव स्क्लेरेन्काइमा सेल्स. और ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, लिग्निन एंड प्रोटीन. क्लियर? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्लेरेन्काइमा जो है वो दो फॉर्म में रह सकता है, दो टाइप है इसका, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फाइबर और इन द फॉर्म ऑफ स्क्लेराइड्स. दिस इज द स्क्लेरेन्काइमा फाइबर एंड दिस इज द स्क्लेरेन्काइमा स्क्लेराइड. फाइबर्स और स्क्लेराइड में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं. Fibers consist of very long, narrow and thick lignified cell. देखो ये थिन तो है, कोई भी चीज़ जब लॉन्ग रहता है, नैरो रहता है, तो हम लोग के दिमाग में आ जाता है ये थिन है. बट देयर इज़ अ डिफरेंस. इट इज़ लॉन्ग, it is narrow, as we can see in the picture also. This is long, it is narrow, but on the other hand or along with that it is thick. thick क्यों है? क्योंकि डेड सेल से बना है और डेड सेल से ये बना है और इसके साथ साथ इसमें लिग्निन डिपॉजिटेड है, लिग्निफाइड सेल वॉल है, इसीलिए ये थिक है पर उसके साथ साथ लॉन्ग एंड नैरो भी है. इसका जो साइज है, इट साइज ऑफ द लेंथ, बेसिकली द लेंथ ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा सेल, इट मे वैरी फ्रॉम 1 millimeter to 550 millimeter in different plants. Nature, depending on nature of the plant, the length of the sclerenchyma cells also vary. Now the fibers, these are usually pointed at both the ends. ये देखो यहाँ पर pointed है. These are not open like pipes, दोनों end खुला हुआ है. Not like that. It's pointed ends, join, right? And these are clustered into strands and look polygonal in transverse section. Transverse section in TS. Transverse section. This is called TS. एक TS अगर हम लोग लेंगे तो ये TS अगर if we study the TS of a sclerenchyma fiber under the microscope, the shape will be visible as the polygonal, right? And in contrast to fibers, now we come to the discussion of the sclerite. What is sclerite? Sclerites are not properly shaped. These are irregularly shaped. फाइबर में हम लोग देखें कि ये लॉन्ग है, थिन है, लिग्निफाइड है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. लेकिन ये जो स्क्लेराइड है, स्क्लेराइड का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है. यहाँ पर जो है स्क्लेराइड का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, लाइक द फाइबर. दीज आर ऑल्सो डेड, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर जो भी सेल है वो डेड है, तो ये भी डेड है. एंड दे डेवलप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज द कॉर्टेक्स, पिट, फ्लोएम, हार्ट सीड्स, ओके एट्सेट्रा. इसमें ये प्रेजेंट रहता है. Often oblique thin areas are found in the thick walls of both fibers and sclerite. These are called the pits. यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो डिपोजिशन है इसके वजह से इसके बीच, ये थिक सेल वॉल के बीच में एक पार्ट है जहाँ कुछ थिन एरियाज हैं. इस एरियाज को पिट कहा जाता है. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द फाइबर, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर एज वेल एज द स्क्लेराइड. ऑलराइट, अब देखते हैं कहाँ रहता है ये. स्क्लेरेन्काइमा ऑकर्स इन एबंडेंस इन आइदर पैचेस और इन डेफिनिट लेयर्स. पैचेस में भी रह सकता है और कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर लेयर्स के बीच भी रह सकता है. दोनों फॉर्म में दिस कैन बी प्रेजेंट. ओके, दे आर फाउंड इन स्टेम अराउंड द वास्क्यूलर बंडल. वास्क्यूलर बंडल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ. वास्कुलर बंडल एक्चुअली शुरू होता है ये एक टिश्यू से, टिश्यू डिवीजन से, और उसके बाद ये बनता है होल बंडल. ये हो गया आपका एक टिश्यू, इसको जाइलम कहा जाता है. हम लोग बाद में इसका
डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट आप लोग ये देख लो। और ये एक टिश्यू है, तो ये आपका कैम्बियम है, ये आपका जाइलम है, ये आपका फ्लोएम है। सो ये जो बंडल बन रहा है इसको कहते हैं वास्कुलर बंडल। ऑलराइट, सो ये वास्कुलर बंडल की चारों तरफ, देन रूट्स, वेन्स ऑफ लीव्स, ये लीफ, इसका जो वेन्स है, इस वेन्स में, लीफ वेन्स में क्या ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, और द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड द नट्स। ओके, sclerites form the gritty part of most of the ripe fruits. Now what are the gritty parts? देखो, जब हम लोग कोई फ्रूट खाते हैं उसका पल्प बहुत इंजॉय करते हैं, एंड within a few minutes or within a few seconds it starts melting inside our mouth, right? लेकिन खाते खाते आप लोग देखोगे कि some sandy type of materials sometimes get stuck inside our mouth with the tongue. ये लगता है, कुछ लग रहा है कि उसको फेंकना चाहिए, we just like to throw it at that time. So ये जो part है, this gritty part, this sandy part, not smooth, which is not smooth, that part comes from for the presence of sclerite. So they form the gritty part of most of the fruits and contribute the hardness of the seed coat and the nuts. हार्ड पार्ट जो रहता है, क्योंकि डेड टिश्यू से बना है तो ये हार्ड पार्ट जो है उसमें प्रेजेंट रहता है। जैसे कि हस्क ऑफ द कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू एंड इज प्रेजेंट इन द मेसोकार्प ऑफ द कोकोनट फ्रूट। फंक्शंस क्या है, क्योंकि ये डेड सेल से बना है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इसमें लिग्निन भी है, सेलुलोज भी नहीं, लिग्निन है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है इसमें। कहाँ पर है? विद इन द मिडल लैमेला। तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्शन देता है प्लांट बॉडी को, राइट? इट गिव्स द स्ट्रेंथ, इट गिव्स द रिजिडिटी, रिजिड बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है, ताकि जब भी विंड फ्लो हो उसमें द प्लांट बॉडी doesn't get damaged, and in this way it enables to withstand to various strains, stress and strain जो है उसको due to by providing the flexibility and elasticity as well as the rigidity and the protection, mechanical strength, it helps, it enables to withstand various kinds of strains. Now comes the protective tissue. दो तरह का प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज कॉर्क और फेलेम। एपिडर्मिस इज द आउटर कवरिंग लेयर, आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी। ये लीफ में भी है, फ्लावर में भी है, स्टेम में भी है, रूट में भी। बेसिकली आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। सो प्रोटेक्शन तो हर एक पार्ट को चाहिए, प्लांट का हर एक पार्ट को चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। वाई? बिकॉज प्लांट कैन नॉट मूव. So each and every part of the plant, if we see the tissues inside it, at the outer side we will find the protective epidermis tissue everywhere. And epidermis is one cell thick and is covered with the cuticle. What is cuticle? Cuticle एक waterproof layer जैसा है, एक waxy substance रहता है इसमें, क्यूटिन, राइट? यहाँ पर एक वैक्सी सब्सटेंस क्यूटिन रहता है, जिसकी वजह से इसका नेचर जो है वो मोम जैसा वैक्सी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये वाटरप्रूफ जैसा काम करता है, कोई भी अंदर घुस नहीं सकता है। टू कवर इट विल हैव टू मैच द नेचर, एंड द क्यूटिकल possesses वेरिएबल थिकनेस इन द प्लांट्स। हर एक प्लांट में इट डिपेंड्स कि किस प्लांट में इसका कितना लेयर है। इन सम प्लांट्स ओनली वन थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल इज फाउंड ओवर द लेयर ऑफ एपिडर्मिस, बट इन सम अदर प्लांट्स में बी मोर थिकर लेयर इज नीडेड ड्यू टू नीड। ये जो aquatic प्लांट्स है उसमें ज़्यादा होता है, whereas in case of terrestrial plants it is thinner. And for instance, it's more thicker in the xerophytic plants, right? Xerophytes जो है वो desert plants, वहाँ पर there is more and more shortage of water. So
जहाँ पर शॉर्टेज ज़्यादा है वाटर का, वहाँ पर प्लांट बॉडी के अंदर जो वाटर रहता है, जो पानी रहता है, उसको कंजर्व करने की बहुत ज़रूरत है. सो इन केस the desert plants or the cactus, the xerophytic plant cactus, in that case if we compare one terrestrial plant of this region or far region and one xerophytic plant like cactus, we'll see कि cuticle जो है वो बहुत ज़्यादा thick होता है xerophytic, to reduce the water loss. Whatever content of water is present inside the plant body, as there is shortage of water, so it is very necessary to conserve the water for future. Okay, and the cells of epidermis are elongated, flattened, and do not contain any intercellular space between them. Their inner contents are similar to the parenchyma cells. Inner content same है, but parenchyma you have to understand, the parenchyma is living cell, but sclerenchyma is not. It is dead cell. तो फंक्शंस क्या है इसका, ये देखो, दिस पिक्चर, दिस इज द अपर एपिडर्मिस, इट इज द टीएस ऑफ मेसोफिल सेल. मेसोफिल कहाँ रहता है, लीफ. दिस इज द टीएस ऑफ मेसोफिल. अपर एपिडर्मिस, टू टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमास आर प्रेजेंट देयर, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा. दिस इज द लोअर एपिडर्मिस. तो दोनों साइड से जो प्रोटेक्टिव जो काम है, प्रोटेक्शन के लिए जो आउटर मोस्ट लेयर रहता है, दैट इज द epidermis. So to protect the plant from desiccation and infection, बाहर का कोई भी इन्फेक्शन हो और desiccation, वहाँ से प्रोटेक्ट करता है. In fact, the cuticle of the epidermis helps to reduce water loss by evaporation from the plant surface and also helps in preventing the entry of the pathogen. Okay, this is the outermost layer, so definitely it will prevent the entry of the pathogen and to cause further infection. ये भी इसमें भी हेल्प करता है और वाटर लॉस जो है उसको भी रिड्यूस कर सकता है. ओके, द सर्फेसेस ऑफ मेनी प्लांट्स कंटेन सम क्यूटिनाइज्ड हेयर ओवर द एपिडर्मिस. ये आप देख रहे हो यहाँ पर क्यूटिनाइज्ड हेयर, क्यों, क्योंकि ये जो हेयर भी है इसका आउटर लेयर में भी, इसका जो आउटर लेयर है उसमें भी क्या है, आपका क्यूटिनाइज है. सो दीज आर कॉल्ड ट्राइकोम्स. दिस इज, so this one is called trichome, right? trichome रहता है. इससे क्या होता है, due to the presence of the cutin over the surface of the epidermis as well as over the surface of the root hairs or the trichomes, क्या होता है इसमें, ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो कम हो जाता है. ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द plant body, from the plant body to the outside, to the atmosphere. So ये भी कम हो जाता है. And the seeds of the cotton contains numerous long unicellular hairs which form the husk of the cotton. In roots, the younger parts are covered with uncutinized layer of epidermis called epiblema. अगर हम लोग रूट में जो एपिडर्मिस रहता है उसकी बात करें, देयर वी विल फाइंड कि द यंगर पार्ट्स दे आर नॉट क्यूटिनाइज्ड, अनक्यूटिनाइज्ड लेयर, क्यूटिन नहीं रहता है उसमें. सो रूट्स, इन रूट्स द एपिडर्मिस लेयर इज नोन एज एपिब्लेमा. ऑलराइट, some of the epiblema cells give rise to tubular outgrowth called root hairs. In roots, some epiblema cells, epiblema in root, epiblema acts as the epidermis, so it gives rise to, sometimes it gives rise to some tubular outgrowth, and those tubular outgrowths are known as root hairs. These long unicellular root hairs increase the absorptive surface area of the root. तो ये एक लेयर है, ये एपिडर्मल लेयर है. एपिडर्मल लेयर में अगर रूट हेयर्स रहता है तो इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया एज वेल. दिस लॉन्ग यूनिसेलुलर रूट हेयर्स इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया एंड दे पास इनटू द सॉइल इंटरस्पेसेस टू एब्जॉर्ब वाटर एज वेल एज द मिनरल्स. बहुत दूर तक पहुंच सकता है एंड एज इट कैन रिच, so it can absorb more water as well as the minerals. Now what is cork? Next one, cork, you can see in this picture with this one.
As plants grow older, the outer protective tissue or the epidermis undergoes certain changes. Epidermis जो है वो farther जब बहुत old हो जाता है plant, जब बहुत old हो जाता है, तब क्या होता है, तब ये epidermis जो है उसमें कुछ changes करता है उसमें. And a strip of secondary मेरिस्टेम that is called phellogen or cork cambium, it replaces the epidermis of the stem. तो जब ज़्यादा ग्रो कर जाता है तब ये एपिडर्मिस जो रहता है वो प्रेजेंट नहीं रहता है. अगर एपिडर्मिस नहीं प्रेजेंट रहेगा तो किसी को तो जो आउटर लेयर है उसको कंटेन करना होगा. आउटर लेयर तो कुछ रहना पड़ेगा, अदरवाइज विदाउट द प्रोटेक्टिंग आउटर लेयर, विदाउट द आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर, plants will be in danger. Why it will be in danger? Because any kind of injury, it may be harmed by any kind of injury, right? So इसके लिए ये ज़रूरी है. Cork cambium is a simple tissue having only one type of cell as well. The cells of the cork cambium, these are rectangular in shape. देखो ये rectangular जैसा है shape में. ओके, एंड देयर प्रोटोप्लास्ट आर वैक्यूलेटेड. प्रोटोप्लास्ट के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस रहता है सेल के अंदर, उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, और उस प्रोटोप्लास्ट के अंदर वैक्यूल्स रहता है, एंड इट कंटेन्स टैनिन्स एंड समटाइम क्लोरोप्लास्ट भी रहता है. कॉर्क कैम्बियम गिव्स ऑफ न्यू सेल्स ऑन इट्स बोथ साइड्स, दस फॉर्मिंग द फेलेम और द कॉर्क. अभी ये जो फेलेम है ये डिवीजन करता है, ये जो फेलेम है ये डिवाइड करता है, और आउटर साइड में क्या बनाता है, आउटर साइड में फेलोडर्म बनाता है, राइट. सो फेलोडर्म, फेलेम, ये सब लेयर बनता है फॉर गिविंग द फार्दर सेकेंडरी ग्रोथ टू द प्लांट. The layer of the cell which is cut by the cork cambium on the outer side ultimately becomes several layers thick cork or the bark of the trees. ये ज़्यादा secondary growth attain करने के बाद bark बनाता है ट्री का, plant का जो bark है, stem, the outer covering of the stem is known as the bark. So this bark is also known as cork. Cork का जो cells है, these are dead and these are compactly arranged without any intercellular space. As you can see that there is no intercellular space, right? No intercellular space is there, and these are the dead cells, dead in nature. These are not at all living. तो living नहीं है इसका मतलब definitely they do not possess protoplasm inside it. Cork is protective in function. Dead cell से बना है तो इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन, इन्फेक्शन, मैकेनिकल इंजरी, राइट. और इसका फंक्शन क्या होगा, बेसिकली प्रोटेक्टिव होगा, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स. डेड सेल्स गिव्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी. कॉर्क इज लाइट एंड डजंट कैच फायर इजीली. फायरिंग इजीली नहीं होता है, तो ये भी दिस इज ऑल्सो वन बेनिफिट. एंड ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज इट इज यूज्ड एज द इंसुलेटर्स और द शॉक एब्जॉर्बर. इंसुलेटर, शॉक एब्जॉर्बर. इंसुलेटर का काम क्या होता है, मान लो एक सेल है, ये दिस इज अ सेल, ओके, दिस इज द इनसाइड एनवायरनमेंट, दिस इज द आउटसाइड एनवायरनमेंट, एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसमें जो है, इसमें मान लो प्लस चार्जेस बहुत ज़्यादा है, कुछ आयन से प्लस चार्जेस बहुत ज़्यादा है, इसमें नेगेटिव, बाहर नेगेटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा है. तो क्योंकि ये कॉर्क प्रेजेंट रहता है, इसके वजह से ये दोनों आयंस डिफरेंट आयंस रहने की वजह से एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है. क्या, ग्रेडियंट. But this gradient is stabilized due to the presence of cork, as cork acts as the insulator here. And it is also used for making different sports goods like the shuttlecocks, like the cricket balls, और table tennis में जो wooden paddles होता है उसको बनाने के लिए भी cork मदद करता है. Lastly we'll come to the stomata. Concept of stomata, what is it? एक लीफ को अगर हम लोग देखें
लीफ पील्स को, लीफ में से अगर हम उसको पील करके उसका जो क्लोरोफिल है उसको निकाले, एंड इफ यू सी इट अंडर द माइक्रोस्कोप, दैट ट्रांसपेरेंट पिल ऑफ द लीफ विल शो दिस स्ट्रक्चर स्टोमाटा. दिस इज द ऑर्गन फॉर ऑफ अ लीफ फॉर gaseous, for allowing gaseous exchange. ये जो पार्ट है इसको हम स्टोमाटा कहते हैं. सो एपिडर्मी, ये एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहते हैं. एपिडर्मिस ऑफ लीफ इज नॉट कंटिन्यूअस एंड एट सम प्लेसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स. ये एपिडर्मल लेयर, मान लो एपिडर्मल लेयर है. वाई इट इज नॉट ऑलवेज कंटिन्यूअस? ये यहाँ पर मान लो एक गैप है. ये गैप क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक स्टोमाटा प्रेजेंट है. दिस इज द this is the stomata. Due to the presence of the stomata, the growth of the epidermis is not always continuous. Each stoma is bounded by a pair of specialized epidermal cells or two kidney shaped cells known as guard cell. ये जो किडनी शेप वाला जो सेल है इसका क्या नाम है? गार्ड सेल. क्योंकि ये क्या करता है, इसका जो पोर है, ये पोर ही मेन गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है. इस पोर को जो गार्ड करता है दो सेल, किडनी शेप्ड टू सेल्स, as they protect the pore, that is why it is known as the guard cells. And the concave side of the guard cells, they face each other and have a space forming a stomatal opening. ये है ये एक स्टोमाटा के अंदर, this is the concave side and this is the convex side. concave side जो है वही पोर बनाने में हेल्प करता है और ये स्टोमाटल ओपनिंग और क्लोजिंग में भी मदद करता है. कैसे होता है दिखाते हैं. So guard cells, these are, here you can see the opening and closing. This is the basic outline of the guard cells of the stomata. ये जो पोर है, ये मूवमेंट से आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो पोर है ये कभी बंद हो रहा है कभी खुल रहा है. In this picture also it's clearly seen. In this picture stomata is closed. यहाँ पर जो है पोर देखो ओपन है. कॉन्केव साइड ऑफ द गार्ड सेल, दे आर हेल्पिंग टू मैनेजिंग द मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ either opening or closing of it. So these are only the epidermal cell which contain the chloroplast. और कोई भी सेल क्लोरोप्लास्ट कैरी नहीं करता है. It allows the gaseous exchange to occur during the photosynthesis, means CO2 and O2. गैसियस एक्सचेंज मतलब ये दोनों गैस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. एंड ऑल्सो रेस्पिरेशन. दीज टू गैसेज आर ओनली वाइस वर्सा, इन अ वाइस वर्सा वे दीज आर यूटिलाइज्ड. एंड ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन टू द वाटर वेपर ऑल्सो एस्केप्स थ्रू द स्टोमाटा. जब प्लांट बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हो जाता है तब ये इस स्टोमाटा पोर के थ्रू आउटर एटमोसफियर के साथ मिक्स होता है, वहाँ से ही ये निकलता है. ओके. Alright, so thank you for watching, and next topics will be discussed in the next class. See you. Thank you.